Welcome, student. Good evening to everyone. I think all of you are very happy and healthy right now. Now we are going to study the new lesson number 8 of class 7. And the name of the lesson is Weather, Climate and Animal Adaptation. It is the first part of this chapter. So we will study about the different aspects of weather and climate in this part. That is introductory part of the lesson number 8. So what is weather? So weather can be defined as a state of atmospheric condition at a particular place at a particular point of time with respect to heat, cloudiness, dryness, sunshine, wind, rain. The weather of a place can change several times a day. मतलब क्या हुआ? कुछ समझ में आया? Weather can be defined as a state of atmospheric condition. Weather किसी भी प्लेस का वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है जो उस पर्टिकुलर प्लेस के उस एक पर्टिकुलर टाइम से रिलेटेड होता है, जो वहाँ के हीट, वहाँ का क्लाउड, वहाँ का ड्राइनेस, वेटनेस, सनशाइन, विंड, रेन, ऑल अदर पार्ट से फैक्टराइज होता है. मतलब सपोज आप जहां पर भी रहते हो, आज का वेदर कैसा है? अभी 5 मिनट पहले बहुत तेज गर्मी थी, सनलाइट आ रहा था, डायरेक्ट सनलाइट आ रहा था, तेज हवाएं बह रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत हाई था. लेकिन जस्ट 5 मिनट बाद वेदर चेंज हुआ और वहाँ पे क्लाउड आ गया और क्लाउड ने वहाँ पे हल्की फुहारे, हल्की बारिश करी और बारिश के बाद गर्मी खत्म होकर के थोड़ा ठंड का एहसास मिला. तो वेदर क्या है? समझ में आया? वेदर उस प्लेस का एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उस प्लेस का, और किस टाइम के लिए? उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, जिस टाइम में उस प्लेस का हीट, क्लाउड, ड्राइनेस, सनशाइन, विंड, रेन एक्सेट्रा से वो पर्टिकुलर प्लेस फैक्टराइज होता है. मतलब ये सारे फैक्टर्स उस जगह के उस वेदर को उस टाइम के लिए फैक्टराइज करते हैं, यानी कि बदलते और चेंज होते रहते हैं. वेदर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में चेंज हो सकता है. बारिश फ्यू सेकेंड्स में हो सकता है, थोड़ी देर के लिए गर्मी, थोड़ी देर के लिए बारिश. तो वेदर चेंज होता रहता है. सो व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर? वेदर का डेफिनेशन समझ में आया ना? वेदर किसी प्लेस का पर्टिकुलर कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जो डिफरेंट एलिमेंट के वजह से होता है, जैसे हीट हो गया, क्लाउड हो गया, सनशाइन हो गया, ये बाकी की चीजें. समझ में आया? नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर. सो द डे टू डे वेदर डिपेंड ऑन द चेंज ऑफ टेम्परेचर. ये है एलिमेंट, जिस एलिमेंट के वजह से वेदर चेंज होते रहते हैं. उस जगह का टेम्परेचर, उस जगह की ह्यूमिडिटी, उस जगह का रेनफॉल, उस जगह का विंड, और भी बहुत सारे हैं. दीज आर द मेन फैक्टर विच इफेक्ट द वेदर ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस. सो लेट्स स्टडी अबाउट द चेंज इन टेम्परेचर. You have already studied in your SST about this topic. Just I am going to explain it more. Temperature is the measured by a special type of thermometer. You have already studied na in your SST. Yes. So by which instrument the temperature can be measured? Temperature is measured by maximum and minimum thermometer. We know the temperature during the morning is low. With respect to that, the temperature
at afternoon is more because the sunlight is directly fall on the earth. So due to direct sunlight, the temperature increases. At the same time, at night the temperature is very minimum. Why the temperature is minimum? Because there is no sunlight at that time. So temperature can easily affect the weather of a particular place. Day is hotter than night, isn't it? Next topic that we are going to cover is humidity. Humidity means, there is some amount of water present in the air in form of water vapor. So the water vapor which present in the air is called humidity. I think we have somewhere experienced when a bottle of Pepsi kept on the tabletop, what happened? A few droplets of water stick on the outer surface of the bottle. Why does it? Because when the water vapor present in the air come in contact with the bottle, it become cool, and the water vapor convert directly into the water droplets and get stick with the outer wall of the bottle. This is called humidity. Means the water vapor that are present in the air is called humidity. Air has a capacity to hold a certain amount of water. एयर के पास वाटर रखने की कैपेसिटी होती है. हवा में पानी होता है और वो पानी किस फॉर्म में मौजूद होता है? वाटर वेपर के फॉर्म में मौजूद होता है, जो हम देख नहीं सकते लेकिन होता है. प्लेस नियर सी, समुंदर के बगल में जो जगह होती हैं, सपोज ये समुंदर है और यहाँ कोलकाता है या यहाँ पुणे है, तो ये समुंदर का जो पानी है ये इवेपोरेट होकर के हवा में मिल जाता है और इस जगह का जो वेदर होता है उस वेदर को वो ह्यूमिड कर देता है. यानी इन जगहों पर वाटर वेपर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और वाटर वेपर का अमाउंट ज़्यादा होने से पसीने निकलते, स्वेटिंग होता है. तो समुंदर के बगल में जो भी प्लेस होता है वो उसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और इस वजह से वहाँ पर गर्मी का एहसास भी कम होता है और ठंड का भी एहसास कम होता है, क्योंकि वाटर वेपर गर्मी में न तो ज़्यादा गर्म लगने देता है और ठंड में न ज़्यादा ठंड लगने देता है. तो चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है. द प्लेस नियर द सी लाइक पुणे एंड कोलकाता हैव मोर ह्यूमिडिटी विद रिस्पेक्ट टू द इंटीरियर टू द सी. जैसे सपोज ये इंडिया है, इंडिया के बीच में दिल्ली है और समुद्र के बगल में कोलकाता है, तो कोलकाता ज़्यादा ह्यूमिड होगा विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, क्योंकि दिल्ली समुद्र के बगल में नहीं है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत कम होगा. तो वहाँ की गर्मी में झुलस महसूस होगा, स्किन जैसे जला हुआ महसूस होगा, और यहाँ के गर्मी में, कोलकाता के गर्मी में चिपचिपाहट महसूस होगा, पसीना महसूस होगा, क्योंकि हवा में ऑलरेडी पानी है, इसलिए पसीने निकलते हैं, पसीने इवेपोरेट नहीं हो पाते. जबकि दिल्ली में और हरियाणा में पसीने इवेपोरेट हो जाते हैं और जलन जैसा फीलिंग होता है. What is the instrument that is used to measure the humidity? The humidity is measured by an instrument called hygrometer. Humidity को कौन से इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं. राइट, वेरी गुड. समझ में आ रहा है ना सारी टॉपिक्स. Next, we are going to cover about the relative humidity. We have learned that the humidity is the water vapor present in the air. So there are two things that are mixed together, that is air and water vapor.
So now question comes, what percent of water vapor is present in the air? Means कितना परसेंट वाटर वेपर एयर में मिक्स्ड है? ये जो परसेंटेज है, ये जब रिलेटिवली जब हम कंपेयर करते हैं कि कितना परसेंट वाटर वेपर एयर में मौजूद हैं और इसका रेशियो निकालते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या कहते हैं? सो देखो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ वाटर वेपर इन द एयर at a particular temperature at a maximum amount of water vapor air that can be hold in that temperature। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, सपोज पर्टिकुलर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में कितना पानी वाटर वेपर उस हवा में है और उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में मैक्सिमम कितना पानी हवा में रह सकता है, इसका रेशियो समझो, इस बात को अच्छे से समझो। सपोज एक पर्टिकुलर ये रेशियो है, ये रेशियो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सपोज कितना वाटर वेपर रह सकता है विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम कितना रहता है। सपोज अभी है 50 और मैक्सिमम मान लो 100 रह सकता है। तो यदि इसको हम कंपेयर करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, 30 डिग्री टेम्परेचर पर अभी 50 है वाटर वेपर और 50 मिलीमीटर, और 30 डिग्री पर 100 होने की कैपेसिटी है। तो जब इसका रेशियो निकालेंगे तो इस रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहेंगे। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, इन द एयर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर द एयर कैन होल्ड एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। उसी टेम्परेचर पर कितना मैक्सिमम वो होल्ड कर सकता है, उसके साथ जब उसका रेशियो निकालेंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकल के आ जाएगी। सो द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। पहले ही मैंने डिस्कस किया था ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंट में एक्सप्रेस करते हैं। यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसी जगह का 100% हो गया, इसका मतलब अब उस हवा में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो गया है। वो हवा अब पानी रोक ही नहीं पा रहा, क्योंकि उस हवा में 100% पानी है। वो सारा का सारा पानी उसी समय गिर जाएगा, बरस जाएगा। सो एट 100% एयर इज कॉल्ड टोटली सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर एंड कैन नॉट होल्ड एनी मोर, क्रिएटिंग द चांस ऑफ रेन, और इसके वजह से पानी बरसेगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं, और इस हाइग्रोमीटर का खोज किसने किया था? लियोनार्डो दा विंसी। किसने खोजा था? लियोनार्डो दे विंसी। ये देखो कब खोजा था? 15 अप्रैल 1452 इन इटली में खोजा था। सो 1452 में उनका जन्म हुआ था, खोजा था उन्होंने 1480 में। सो फॉर टुडे क्लास दैट मच। Remember to write the notes of all topics that has been given over here. Obviously, I am going to give some question every day on the basis of class. Okay. So, hope for your better learning. If you have any kind of queries or any kind of problem regarding the subject matter, you can ask me and you can make the call also. Hope for your better learning. Thank you. Bye-bye.